ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظون صدق الله العظيم. مائک والے ذرا اس کی آواز بڑھاتے ہیں اور دائیں طرف جو حضرات باتیں کر رہے ہیں شور کر رہے ہیں وہ یہاں سے تشریف لے جائیں. داہنے طرف جو بچے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ یہاں سے فوراً تشریف لے جائیں, کہیں کمرے میں بیٹھ کے باتیں کریں. آواز مائک کی اور بڑھا دو. مائک والے جہاں بھی ہوں آواز بڑھی نہیں ہے, اس کی آواز بڑھا دو. اور آپ حضرات سے گزارش ہے جو بہت پیچھے بہت تھوڑی دیر بات ہوگی, بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں, بڑا وقت ہو چکا ہے, تو دعا کا وقت ہے, وقت ہی نہیں رہا. آپ حضرات ذرا آگے تشریف لے آئیں, بیچ بیچ دائیں بائیں ادھر ادھر تھوڑا سا ایک ہو کے بیٹھنے کا ٹاول ہے. بیٹا تم لوگ ذرا سا ادھر سائڈ ہے, سنو بیٹا ادھر چلے جاؤ کرسی ہے, بڑوں کو سامنے رہنے. آپ لوگ ادھر آئیے نا, بیچ میں آئیے نا. ہاں تھوڑی اور کوشش کر لیجیے. سر چاہیے نا بیچ میں. نہیں بچے نہ ہے سامنے, آپ آ سکتے لوگ بیٹھے ہوئے سائڈ میں, ان کو بلائیے. کوئی بات نہیں, شرم لگتی تو نہ شرم لگتا. ہاں کوئی نہ ہو تو کرسیاں ہٹا دی جائیں, انہیں خالی کرسیاں مناسب نہیں. چلیے جس کی جہاں مرضی ہو بیٹھ سکتا. آواز مائک کی بڑھاؤ گئے ہو, آواز تھوڑی سی اور بڑھا دو مائک کی. 1000-1500 مجھ سے لے لینا ہے اس آواز بڑھانے کے, بہت کم آواز ہے. مجھ سے بہت تھکے, تھوڑی سی اور آواز. ہاں ہلکی سی کم کر لو, سیٹی نہ رہے ذرا ہلکی. ہاں بس اتنے چھوڑ دو. اب دوبارہ مشین کو ہاتھ مت لگائیے گا, اتنی ہی آواز رہنے دیجیے. اب کوئی بچا تو ہے نہیں, اکیلے ہی بچے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ایک شعر میں شروع میں پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد کچھ عرض کر دیتا ہوں. ایک بار درود پاک پھر پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اس پر تھکیں نہ, اللہ کے محبوب کے احسانات امت پر اس قدر زیادہ ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں اپنی مثال میں, بدن میں جتنے بال ہیں سارے بالوں میں جان پہنا دی جائے اور ساری جانیں مدنی آقا علیہ السلام پر باری باری قربان کر دی جائے, جب بھی محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا. ہمارے آقا تو پوری زندگی روئے ہیں, غمزدہ رہے ہیں. ایک شعر یاد آیا ہے, شعر شاعری تو بہت ہو چکی ہے اور آپ اتنا زیادہ سب ہو ہاں میں لگے کہ خود گم ہو گئے تھے. سمجھ پائے ہو نہ سمجھ پائے بات اور ہے. اگر سمجھے ہوتے سمجھدار ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا. خیر بھیا کوئی باولے ہیں کیا؟ مولانا ابرار صاحب تو لوگ باولے ہیں نا, پاگل ٹائپ, ان کو بھگا دیجیے. ہاں ان کو منہ میں بیماری ہے, یہ پاگل ہے. ایک بار بتایا جا چکا, یہاں باتیں نہ کریں. کچھ لوگ عقل کے مارے ہوئے ہوتے ہیں,
और वो बीमारी जाती नहीं है। कुछ बावले तो रात में 2-2 बजे रात ऐसे भाग लेते हैं, कुछ अता पता नहीं होता, बावले होते हैं। कुछ लोगों को बोलने की बीमारी होती है, अल्लाह ने मना फरमा कि बिला वजह बोलबे न करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। दूसरे नंबर पर है ऐसे मोमिन कामयाब हो गए जो लघु बातों से, बेकार बातों से बचने वाले हैं। ये हमारी बात नहीं है, अल्लाह की बात है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। पहले नंबर पर है जो लोग अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करने वाले हैं, वो मोमिन कामयाब हो गए। और दूसरे नंबर पे है जो लघु बातों से, बेकार बातों से बचने वाले हैं, अल्लाह फरमाते वो मोमिन कामयाब हो गया। अब बोलने की आदत ज्यादा, जिसको देखो वही बोलता है। अरे बोलो है कि नहीं? और ज्यादा बोलते बोलते नौबत आ जाती है, बीवी निकाह से निकल जाती है। अरे बोलो होता नहीं होता? इस मौजू पर हम बात तो नहीं करेंगे, एक इशारा करेंगे जो बड़ी तबाही की चीज है। आज से तकरीबन 14 साल पहले प्रोग्राम था, यूपी के बड़े बड़े उलमा हजरत मौलाना अब्दुल हलीम फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत के घर से, और हजरत मौलाना उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम थे, हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सन 1982 में दारुल उलूम देवबंद के हदीस और तफसीर के उस्ताद रहे और दुनिया भर में उनकी तकरीर का डंका बजा। भैया पीछे वालों को में लगाम लगा दो। हाँ जाए तो अच्छा है। एक औरत आई घर में, हमारी बीवी से कहा कि बड़ा लफड़ा होता है, मौलाना से कहो कुछ जरा कुछ बना दे ताबीज वगैरह, तो मैंने बना के दे दिया। ताबीज बनाई मैंने तो लिखा होगा कुछ न, ऐसे बस उस पर से टेप कर दिया। मैंने कहा यही पकड़ा देना और ये बोल देना जैसे ही झगड़े की नौबत आए फौरन ताबीज को दांतों से दबा ले। एक हफ्ते बाद आई, कहा मौलाना का ताबीज फायदा कर गया। बीवी ने कहा कैसे? कहा जैसे झगड़े की नौबत आई मैंने फौरन दांत से ताबीज को दबा लिया। जब बोलेगी नहीं तो लफड़ा कहां से होगा? खुद ही बहुत बोलती थी। अल्लाह सही समझ आता फरमाए। उस प्रोग्राम में बहुतेरी तकरीरें हुई, मेरा भी एक बयान हुआ उसमें। तो कहा मौलाना आखिर में हो जाए, मैं तो फेंक दिया जाता हूँ बाद में। ये तो कहीं अल्लाह ने जिंदगी दी है तो बच जाता हूँ। तो मैंने कहा अब एक बात चल पड़ी है, बहुत गौर से सुनेगा, 1 मिनट की है। लोग कहते हैं एक जगह बैठकर चाहे जितनी तलाकें दी जाए एक ही तलाक वाक़ई होगी, ऐसा भी कहने वाले हो चुके हैं। अब यहाँ हो ना हो लेकिन है, एक जगह बैठकर चाहे जितनी तलाकें दी जाए एक तलाक वाक़ई होगी, एक ही मानी जाएगी, ये मौजूद था। मैंने कहा भाई जरा ये बता दो, एक जगह बैठकर कोई 10 बार तिलावत कर ले कितने माने जाएंगे? लोगों ने कहा हजरत 10 ही माने जाएंगे। मैंने कहा एक जगह बैठकर कोई 100 बार कलमा पढ़ ले कितने माने जाएंगे? कहा 100। मैंने कहा एक जगह बैठकर कोई 100 तस्बीह पढ़ ले, 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ ले, 100 बार दरूद पाक पढ़ ले कितने माने जाएंगे? कहा 100। मैंने कहा एक जगह बिठाकर किसी को 10 लातें मारी जाए कितनी मानी जाएंगी? कहा 10। तो मैंने कहा वो बात समझ नहीं आई, तलाक हो गई। एक जगह बैठकर 10 पारे तिलावत करो 10 का सवाब मिले, 100 तस्बीह पढ़ो उसका सवाब मिले, 100 बार दरूद पढ़ो उसका 100 सवाब मिल जाए, पूरा 100 का 100 मिल जाए, और तलाक दो 18 बार हो एक है। कहा बात समझ में आ गई। मैंने कहा ये जो बात करें तो पीठ पे कम से कम 10 लाठी मारो, बता दो भैया एक ही मारा है। जब वो कहे आपने 10 मारा, कहा हमने उठा के थोड़े एक ही जगह बैठे थे, पीट दिया है, एक लाठी यहाँ मारते उठा के उधर ले जाते, दूसरी मारते उधर ले जाते, तीसरी मारते, तब ना होती ना। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। लोगों ने कहा हजरत बात समझ में आ गई है और सही यही है। कुरान ने कहा अत्तलाक़ु मर्रतान,
जब दो दी जाती हैं तो दो होती हैं, एक होगी तो एक होगी। इस मसले पे हमें गुफ्तगू नहीं करना, इशारा करना था। अल्लाह सही तरह हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, गमज़दा रहे। हम तो अपने माल के लिए, बच्चों के लिए, बनाने के लिए, इज्जत के लिए बीमारी से रोया करते। अरे बोलो, रोते नहीं रोते? कोई ज्यादा बीमार हो जा, तंग हो जा तो बीमारी से रोएगा। बाद लोग बुढ़ापे से रोया करते कि हमेशा जवान रहते, चाहे हफ्ते में 3 बार दाव लगाते, उस तरह से साफ कर लेते। भैया बुरा ना मानिएगा, चाहे हफ्ते में 3 बार दाव लगाते, बिल्कुल चेहरा साफ होता, लगता है बिल्कुल 32 साल के जवान है। और चाहे पूरे पैर सब इधर उधर डगमगा रहे हो। अरे बोलो, करते नहीं करते? एक शेर याद आया है बीच में कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? शक्ल बना ली सूरत तो है, गैरों सी पहचान कहाँ से लाओगे? शक्ल बना ली। तय करो ईमान वालों, अल्लाह के महबूब की सुन्नत पर अमल। कोई लफड़ा होगा तो हमें फोन करके बता दीजिएगा। कोई नहीं रोका करता, कोई नहीं रोकता। बीवी भी नहीं रोकती कि तुम बाबा बन के, मुल्ला बन के आ गए। बीवी भी नहीं मना करती। कोई सुन्नत पे करेगा? ये अपने आप कहता है, पता है कि माने न माने, दोस्तों नफरत करें, बीवी भी करें, अपने आप है। और ऐसा है भाई कोई नहीं। हफ्ते में 3 बार दाव लगाए, चेहरा साफ करवा ले, तभी कोई तारीफ नहीं करके बिल्कुल बबुआ बने घूम रहे। कोई तारीफ हरी अपने आप में खुश है कि हम बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो हर आदमी करता है। जब दूसरों की नजर में अच्छा होना, अरे बोलो भाई, हम इस पर बात नहीं करेंगे, इशारा करेंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी उम्मत के लिए गमज़दा रहे, रोते रहे। क्यों रोते रहे? कि हमारी उम्मत जन्नत वाली बन जाए, जहन्नम से बचाए। इसके लिए पूरी जिंदगी महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे। हम बीमारी से रोते हैं, तकलीफ से रोते हैं, बुढ़ापे से रोते हैं, इन चीजों से रोते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम तो उम्मत के लिए रोते रहे। किसके लिए रोते रहे? कि आंखें रही है उम्र भर, आंखें रही है उम्र भर, फिक्रे नजात में ही नम, फिक्रे नजात में ही नम। आंखें रही है उम्र भर, फिक्रे नजात में ही नम। आका को मेरे किस कदर, आका को मेरे किस कदर, उम्मत से अपनी प्यार। ओ बाबा, हमारी तरफ देखो, चाहे 250 रुपया दिखाई ले लो, दाएं बाएं देखो कि हम तकलीफ भूल जाएंगे। इसीलिए हमने बड़ी उम्र के लोगों को बिठाया है जो हमारे उम्र के आसपास हो। बच्चों को इसीलिए तकलीफ सिखाया है। और दाएं बाएं देखोगे तो फिर आप समझ लो, जिस ड्राइवर ने दाएं बाएं देखा आज तक ना बचा है, ना किसी को बचा सका है। खुदा हो गया, 10-5 औरों साथ चले गए। अरे बोलो, गए नहीं गए? इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आका को मेरे किस कदर, उम्मत से अपनी प्यार है, उम्मत से अपनी प्यार है। मैदाने क़यामत में बारी बारी सबको अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। अगर कोई बचना चाहे, भागना चाहे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐनल मफर, भागने की कोई जगह ही नहीं, भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा? सबको अल्लाह की अदालत में जाना पड़ेगा। अल्लाह की अदालत में जाने से पहले मैं अर्ज किया करता हूँ, कोई आदमी किसी जुर्म में फंस जाए, कोई इस पर इल्ज़ाम आयद हो जाए कि कोई गलती हो जाए, जब वो जाया करता अदालत में सोचता है मुझे कोई अच्छा आदमी मिल जाए, कानूनदा मिल जाए, कोई वकील मिल जाए, कोई नेता मिल जाए। कौन मिल जाए? भैया आपको नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही तो हम फौरन दुआ करवा दें। नहीं, हम वैसे तके हैं और आज बीमार भी थे,
कोई नेता मिल जाए, वकील मिल जाए, कोई अच्छा आदमी कानून जानने वाला मिल जाए, और जाना कहाँ है? अदालत में। अरे बोलो है कि नहीं? वो भी मसला सामने है। हजरत नबी, हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा साहब मुत्तज़िलहुल आली नबी, और मैं तो वो आदमी हूँ कि हजरत मौलाना वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो अपने ज़माने के शेर थे, हजरत की मौजूदगी में भी मैंने कई बयान के हजरत मुझे बहुत चाहते रहे। ये अल्लाह का इनाम है। तो आदमी सोचेगा कोई बड़ा मिल जाए, नेता मिल जाए, कानूनदा मिल जाए, उसके साथ हम अदालत में जाए ताकि बच जाए। अरे बोलो होता नहीं होता? अल्लाह से ज्यादा बड़ी अदालत किसी की नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह ही तमाम हाकिमों का हाकिम है। क़यामत के मैदान में सबको बारी बारी अल्लाह की अदालत में जाना पड़ेगा। सोचेगा कोई अपना मिल जाए, सारे लोग भाग जाएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यौमा यफिर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, सारे एक दूसरे से भाग जाएंगे। बाप बेटे से, बेटा बाप से, सब एक दूसरे से, बीवी शौहर, भाई बहन, फलाना ढकाना, सारे रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। एक रिश्ता बाकी रहेगा, वो रिश्ता है सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरिश्ते अल्लाह की अदालत में ले चलेंगे तो ये बोलेगा, ए फरिश्तों सुनो जरा सा, हमको जरा मौका दिया जाए। क्या दिया जाए? थोड़ा सा मौका दिया जाए। कैसा मौका? शेर याद आया, दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें रही है उम्र भर फिक्रे नजात में ही नम, फिक्रे नजात में ही नम, आका को मेरे किस कदर उम्मत से अपनी प्यार है, उम्मत से अपनी प्यार है। चश्मा वाले भैया टेप छोड़ दीजिए, सहारा लोगे तो भैया सहारा किसी पे न लगाओ। जिसने बच्चों पर सहारा कर लिया, भरोसा कर लिया, बुढ़ापे तक की पिटाई होती है। अरे बोलो है कि नहीं? जिसने दोस्तों पर सहारा कर लिया, मौके पर पैदल ही होगा, पीठ कुटवा के आया। अरे बोलो सहारा किसी का नहीं, सहारा है तो किसका है? अल्लाह का। इस पर एक शेर कहा करता हूँ कि जब से सर मैंने तेरे दर से हटा रखा है, सैकड़ों दर ने, सैकड़ों दर ने मेरे सर को झुका रखा है, सैकड़ों दर ने मेरे सर को झुका रखा है। भैया भरोसा हो तो किस पे हो? अरे सैकड़ों लोग में दो चार बोले, बाकी बोलबे नहीं किए। अल्लाह सच और सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। भैया जब सच बात है तो बोल दो, बाकी चुप ही रहो। और मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बोलो सच बोलो वरना खामोश रहो। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया। क्यों फरमाया? आका ने इरशाद फरमाया, कलाम इब्न आदम अलैहि लहू, आदमी की हर बात, उसका हर कलाम उसके ऊपर बोझ है। क्यों बोझ है? आपने तो बोल दिया इधर उधर की, फरिश्तों ने लिख लिया। आपके तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फरिश्तों ने नामे अमाल पेश कर दिया, क़यामत में लफड़ा होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, इन्नल अबरार लफ़ी नईमिन व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। भैया बात में बात कर लीजिए। ओ भाई हजरत, वहीं जाके बात कर लीजिए, यहाँ ना करिए। हम सबको मना करते हैं, आप भी कुछ फरमाइए नहीं, आज अकेले बोलने दीजिए। हम तो घर में हम जब बात करते हैं कभी तो हम बच्चों को दूर कर देते, हमको भूल होती, बच्चों को नहीं बिठाते, दूर कर देते हैं, हमको भूल होती, मिजाज में थोड़ा सा बीमारी है ना, भूल जाते हैं। तो फरिश्ते तो गाफिल नहीं है, आप कह के भूल गए। तो आका ने फरमाया, बोलो तो सच बोलो वरना
खामोश रहो। तो जब अच्छी बात बोलने की बात तो बोल दिया करो, बाकी अपना छुपाए। तो अर्ज कर रहा था, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, और वहां तक जाने के लिए हर एक सोचेगा कैसे जाएं। और बात मुझे याद आई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी रोए, उम्मत के लिए गमज़दा रहे। एक दिन बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आपकी ज़ौजे मुबारका ने पूछ लिया, अल्लाह के महबूब आज तो आप बहुत खुश नज़र आए, अल्लाह के महबूब की बीवियों के बारे में क्यों कोई ये कह दे हमारी माँ नहीं, ईमान से फौरन खारिज हो जाएगा, मेरी बात नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, अपनी माँ से नाराज होकर कह दो तुम हमारी माँ नहीं, गलत किया है, तकलीफ दी है, लेकिन ईमान से खारिज नहीं होंगे। अल्लाह के महबूब की बीवियों के बारे में किसी ने कहा हमारी माँ नहीं, तो ईमान ही से खारिज हो जाएगा। बहुत खुश नजर आए इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों खुश नजर आए? मुझे आयतें कुछ याद आई। एक मर्तबे कुफारे मक्का ने कुछ सवाल कर लिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब दे दूंगा। काफी टाइम गुजर गया, जब आसमान से फरिश्ता उतरा नहीं, बात खत्म हो गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को रंज हो गया, लोगों ने ये कहना शुरू किया इनके रब ने इनको छोड़ दिया, इनका अल्लाह इनसे नाराज हो गया। कुफारे मक्का ने कहना शुरू कर दिया कि इनके रब ने इनको छोड़ दिया, इनका अल्लाह इनसे नाराज हो गया। सुनो ईमान वालों, अल्लाह ने इस बात पे कसम खा ली। जरा भैया के लिए, ओ भाई सहारा छोड़ दो, सहारे के बारे में तुमने तकलीफ की इतनी देर, भाई सो ना। मैंने पहले कहा था मौलाना अबरारुल हक साहब से कि बहुत देर में कोई सुन नहीं पाता, चाहने के बावजूद जब नींद गालिब होगी तो कौन इसको बर्दाश्त कर लेगा। तो कहा जो कुछ है आप बर्दाश्त, मैंने कहा मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अब सब थोड़े कर पाएंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में लोग कहने लगे इनका अल्लाह इनसे नाराज होगा, इनके रब ने इनको छोड़ दिया। अल्लाह ने फौरन दो चीजों की कसम खा ली। अरे बोलो भाई, अल्लाह ने दो चीजों की कसम खा के इरशाद फरमाया, वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं कसम खाता हूँ दिन की जब वो रोशन हो जाए, वज़ुहा, अल्लाह फरमाते हैं मैं दिन की कसम खाता हूँ जब वो रोशन हो जाए, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम खाता हूँ जब वो करार पाए, रात अंधेरी हो जाए, तारीख हो जाए। अल्लाह ने दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई। ए मेरे महबूब, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है ना ही वो नाराज हुआ। अल्लाह ने खुद कसम खा के इरशाद फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तर्जुमा तो ये है, सुहा से मुराद दिन की रोशनी और सजा से मुराद रात की तारीकी, रात का अंधेरा। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दिन से मुराद चेहरे अनवर है महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रात से मुराद जुल्फ़े मुअम्बर है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक मुझे शेर याद है किसी का कि उठा ले दोष पे, दोष कहते हैं कंधों को, कि उठा ले दोष पे कमली तो रहमत की घटा छाए, उठा ले दोष पे, उठा ले दोष पे कमली तो रहमत की घटा छाए, तबस्सुम रेज़ियों से उनकी कमली नूर बरसाए, तबस्सुम रेज़ियों से। शमए रिसालत के परवानों, क्या जात थी ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऐसे अजमत वाले नबी के तरीके को छोड़कर हम दुनिया में फंस करके ज़लील व ख़ार हो गए। अरे बोलो है कि नहीं? हजरत मौलाना ने शेर पढ़ा था, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।
ہمارے آقا علیہ السلام غمزدہ ہوئے تو اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا، اے نبی نہ تو میں نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ما ودعک ربک وما قلی، اور جس بات پر ہمارے آقا خوش ہو گئے تھے، آپ کی زوجہ مبارکہ نے دیکھا اللہ کے محبوب کا چہرے انور کھلا ہوا ہے، پوچھا اللہ کے محبوب آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ مدنی آقا نے عرض کیا جب تک میری ساری امت جنت نہ چلی جائے تب تک مجھے پوری خوشی ہی حاصل نہیں ہو پائی۔ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، اے نبی اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آقا عرض کرتے ہیں جب تک میری ساری امت جنت نہ چلی جائے تب تک مجھے پوری خوشی۔ تو میدان قیامت میں جب آدمی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، فرشتے پکڑیں گے چلو اپنا حساب دینے کے لیے۔ جو میں نے ابھی شعر پڑھا تھا شروع میں نا، اس کا دوسرا حصہ باقی ہے، آپ سماعت فرما لیں اچھی طرح۔ بھیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں تو نعت یا شعر پڑھتا ہوں تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، خالی ایسا ہی چلا پڑے تو قریب میں کر کے چلا ہم بھی سکتے ہیں، اور 33 سال چلاتے ہو گئے، لیکن آپ کو ملے گا ہوا نہیں لگے گی، ملے گا کچھ نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں، دنیا کی عدالت میں جانے کے لیے دوستوں کا سہارا، نیتا کا سہارا، وکیلوں کا سہارا، اثردار آدمی کا سہارا، ارے بولو لینا پڑتا نہیں لینا، کہیں پیٹھ نہ لال ہو جائے اسے چلے جائیں۔ ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں پیش خدا مگر ابھی، پیش خدا مگر ابھی، اے فرشتوں رک جاؤ ذرا، پکڑے ہو لیکن ابھی نہ لے چلو وہاں تک عدالت تک۔ کیوں نہ لے چلو؟ کہ ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں پیش خدا مگر ابھی، مجھ کو شفیع حشر کی، مجھ کو شفیع حشر کی آمد کا انتظار ہے، آمد کا انتظار ہے۔ میں اللہ کی عدالت میں جاؤں اور مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاؤں، نبی کو دے کر اللہ رحم فرما دے گا، مغفرت فرما دے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما دے۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آنکھیں رہی ہیں عمر بھر فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم، آقا کو میرے کس قدر امت سے اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے۔ طے کرو ایمان والو، کم سے کم 100 بار روزانہ محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں گے، اور سب سے بہتر درود درود ابراہیمی ہے، اور وہ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ درود سب سے بہتر ہے، اسی کو پڑھ لیا کریں، ہر ایک کو یاد رہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اتنا ہی نہیں، بات لمبی ہوئی جا رہی ہے۔ جب لگے آپ سفر میں تھکے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھتے رہیے، آپ کو سفر کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔
जब खाना निकालने की बारी आए, कभी कभी खाना पकाए 8 लोगों भर का मेहमान, 8 और आ गए अलग से, और बेवक्त आए। अरे बोलो है कि नहीं? अब वो 10 बजे रात आ गए, दिन में 2 बजे आ गए, खाना पक चुका था 10 ही बजे। लग रहा है खाना घटेगा, नहीं। जब खाना निकालने की बारी आए, औरतों को चाहिए, माँ बहनों को चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना निकालना शुरू कर दे, फिर बराबर दरूद पाक पढ़ती रहे। इंशाल्लाह दरूद पाक की बरकत की वजह से खाना घटेगा ही नहीं, आने वाले भी उसे में खा जाएंगे, घटेगा नहीं। बड़ी बरकत है दरूद पाक में, शमे रिसालत के परवानों। और इतना ही नहीं, जो बराबर दरूद पाक पढ़ता रहे, पढ़ता पढ़ता सो जाए, इसकी अपनी आदत बना ले, पढ़ता पढ़ता सो जाए, एक न एक दिन जरूर महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत कर लेगा, आका का दीदार कर लेगा। आका फरमाते, जिसने ख्वाब में मेरा दीदार किया, गोया हकीकत में उसने मुझको देखा। इसलिए महबूब दो जहां की शक्ल शैतान पर हराम है, आका की शक्ल में आ ही नहीं सकता। वो शक्ल है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। लायक़े सद एहतराम हज़रात उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम वो बानियान जलसा, कई एक तकरीरें जामे हुई हैं। हज़रत मौलाना खालिद साहब गाज़ीपुरी मद्दज़िल्लहुल आली, उस्ताद हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा, हज़रत की बड़ी शख्सियत थी हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा साहब मद्दज़िल्लहुल आली। ये 2 शख्सियत बड़ी अहम, बहुत बड़ी। हज़रत मौलाना खालिद गाज़ीपुरी साहब के साथ सन 1992 में ज़िला सिद्धार्थनगर भदोखर बाज़ार में मेरा पहला बयान हुआ था। 33वां साल है। आज तक बराबर हजरत से ताल्लुक़ है। मैंने फ़ोन किया तकरीबन 4 बजे, बहुत खुश हो गए, हंसे और कहा मैं मुजफ्फरपुर आ चुका हूँ और यहाँ मेरे कुछ शागिर्द हैं, उन्हीं के यहाँ भी क़याम है, गाड़ी आएगी। बहुत कहा कि आप आ गए, बस खुश हो गए। हजरत ने फ़ोन पर फौरन ही खुशी जाहिर की। ये ताल्लुकात हैं। तो 2 अहम तकरीरें हो चुकी और बाकी भी हुई होंगी, मैं था नहीं। तो हजरत गिरामी सब कुछ तो हो चुका। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की है, उसी के ताल्लुक से, उसी की रोशनी में मुझे कुछ अर्ज करना है। तो यार टाइम कुछ था, देखा तो 3:21 हुए। क्या बताएं, हमको खुदा ही बुढ़ापा, हम समझ ही नहीं पाते कहीं टाइम कितना है, कितना चला गया। दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस अमानत को हमने नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए नहीं बिगड़ा करता, सारी दुनिया बगावत कर जाए नहीं बिगड़ा करता, सारी दुनिया उल्टा कर जाए नहीं बिगड़ा करता। चैलेंज अल्लाह का है और अल्लाह का चैलेंज कोई कबूल, किसी में दम नहीं है अल्लाह के चैलेंज को कबूल करे। आज ये दौर है, कुरान सही तरह नुस्खे के साथ मौजूद है। जिस दौर में कुरान कहीं तो ऊँट के चमड़े के ऊपर लिखा हुआ था, कहीं ऊँट के हड्डी के ऊपर लिखा हुआ था, उसकी आयतें लिखी हुआ करती थी। कहीं तो बांस के टुकड़े पर, फर्चे पर उसकी आयतें, सूरतें लिखी हुआ करती थी। कहीं तो यहाँ कहीं वहाँ, इस तरह से खजूर की शाख के ऊपर भी कुरान मुक़द्दस की आयतें लिखी हुआ करती थी। जब नुज़ूल हुआ है कुरान मुक़द्दस का, हमारे आका अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी पढ़ा करते थे, जल्दी से याद हो जाता कि भूलने न पाए। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी याद करने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब आप जल्दी न करो, आप जल्दी सुन रहे हो भैया? चचा आपको ये बीच वाले चचा हमारी तरफ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब आप जल्दी न कीजिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, आप अपनी जबान को हरकत न कीजिए, जल्दी जल्दी न कीजिए, जल्दी याद हो जाए। क्यों? ए नबी आप जल्दी न करें, जिम्मेदारी मेरी है, मैं याद कराऊंगा, बयान कराऊंगा, जमा करूंगा, हिफाजत करूंगा, ये सारी जिम्मेदारी ए महबूब मेरी है।
जमअहु व कुरआना, जमा करना हमारा काम है, बयान करना हमारा काम है, याद कराना हमारा काम है, हिफाजत करना भी। शमे रिसालत के परवानों, इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने शुरू से ले ली। हजरत मौलाना खालिद साहब ने बयान में फरमाया, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली हो, सारी किताबें तो किताबुल्लाह रही, कुरान मजीद किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है, अल्लाह किताब भी है, अल्लाह का कलाम है, कलाम नहीं बदलता है। किताब में कमी पेशी रद्दो बदल तरमीम हो सकती है, लेकिन अल्लाह के कलाम में ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, उसमें फर्क नहीं पड़ता। इस पर एक शेर में कहा करता हूँ कि कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। अरे बोलो, इसमें फर्क आ सकता है? नहीं। एक तरफ ये मौजिज़ा है सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दूसरी तरफ करामत है उम्मत के लिए। करामत समझते हो? दूसरी तरफ उम्मत के लिए करामत है अल्लाह के महबूब का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान मुक़द्दस, उम्मत के लिए करामत है कुरान मुक़द्दस। क्यों? एक 10 साल का बच्चा, उसने भी सीने में कुरान को महफूज कर लिया, 12 साल के बच्चे ने सीने में कुरान को महफूज कर लिया, 13 साल 15 18 साल के बच्चे ने कुरान को सीने में महफूज कर लिया। कोई पतली सी किताब 10 वरक़ की लाई जाए और पूरा हूबहू उसको याद हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। हर हर्फ याद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ कहीं भूलेगा, भटकेगा, फर्क आ जाएगा। बात क्या है? 6666 आयतें कुरान मुक़द्दस में। एक मामूली सी उम्र रखने वाला 10 साल का बच्चा पूरा कुरान सीने में महफूज किए हुए, ये करामत है उम्मत के लिए, मौजिज़ा है सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अरे बोलो, है कि नहीं? अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए कोई बात नहीं, सारे लोग खिलाफ हो जाए कोई बात नहीं, एक आयत भी बदली नहीं जाएगी। लोगों ने कहा 6 आयतें निकाली जाए, नहीं हो पाएगा। शुरू जमाना में मक्के के कुफार कहने लगे, मुशरिकीन कहने लगे, ये कुरान तो गढ़ लिया गया, अलग से बना लिया गया, हमारे आका ने इरशाद फरमा नहीं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमा, ए नबी आप बोल दीजिए, बता दीजिए, कह दीजिए, क्या कहिए आप इनको बोल दीजिए। अगर तुम्हें लगता है कुरान अलग से बना लिया गया, लिख लिया गया, गढ़ लिया गया, आप इनसे बोल दो ऐसी दूसरी किताब बना के ले आए और सब मिल करके ले आए। और अगर पूरी किताब नहीं बना सकते, अल्लाह ने इरशाद फरमाया औसुवरिन मिन मिस्लिही, ऐसी कुछ सूरतें बना के ले आए। अगर इनमें दम है, किसी के अंदर दम नहीं था, नहीं कर सका, और अल्लाह का कुरान आज तक उसी खूबी के साथ, अरे बोलो, है कि नहीं, उसी खूबी के साथ मौजूद है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने इसको नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले, और जिसकी हिफाजत अल्लाह कर ले, पूरी दुनिया मिलकर उसको नेस्त व नाबूद, बाल बाका नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले ले। अरे बोलो, है कि नहीं? बात याद आई तो अर्ज करूं जरा। महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में चले गए। कहां? गारे सौर, जहां सांप ने डसा था और आपके साथी साथ में थे। अपने जानू पर महबूबे दो जहां का सर मुबारक रख लिया। आका तो सो गए और आपको सांप ने डस लिया तो अपने पैर ही को नहीं हिलाया। क्यों नहीं हिलाया, जुम्बिश नहीं की कि अबू बकर की जान रहे या जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन महबूबे दो जहां की नींद में खलल ना आए। और इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, इशारा ही करूंगा। कोई दुनिया वाला रोएगा, उसके आंसू तकिया पे गिर जाएंगे, कोई रोएगा उसके आंसू उसके दामन पे गिरेंगे। अरे बोलो, है कि नहीं? उसके आंसू उसके दामन पे गिर जाएंगे। कोई रोएगा, उसके आंसू इधर उधर हो जाएंगे। अरे होता नहीं होता?
اور رونے والے تو بہت ہیں، نہ جانے کتنے رونے والوں نے جانے کھو دی ہے چھچوندروں چکر میں. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ رونے والے تو بہت ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور پر آپ کے آنسو گر گئے. قربان جاؤں شمع رسالت کے پروانوں، ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہوگی جو چہرے انور پر گرے ہیں محبوب دو جہاں، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بات آئی ذرا عرض کروں، قیامت کے میدان میں ہر ایک کی گواہی پیش کی جائے گی، ہر ایک کی گواہی، ہر ایک کی گواہی. حضرت عثمان غنی کی باری آئے گی، پروردگار عالم فرمائیں گے گواہی دے دو. قرآن بولے گا پروردگار گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، میں تیرا آخری کلام قرآن مقدس بول رہا ہوں. انہوں نے شہادت کا جام کیا، خون میرے اوپر آیا، میں ان کی شہادت کا گواہ خود موجود ہوں. قرآن مقدس بولے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کی باری آئے گی، گواہی پیش ہو جائے گی. مسجد نبوی کا محراب و منبر بولے گا پروردگار میں آخری نبی کے سجدوں کے مسجد اس کے گواہ ہوں کہ انہوں نے شہادت کا جام کیا. ابو لولو مجوسی نے برچھا مارا تھا. لیکن قربان جاؤں شمع رسالت کے پروانوں، جب باری آئے گی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کون بولے گا؟ جب جاگو گے تب ہے نا. اب 2 ہی 3 لوگ بچے ہیں، باقی سب تو سمجھ گئے ہیں کہ اب سونا اچھا نہیں ہے. اب کون گواہی دے گا؟ اللہ اکبر. اللہ سچی محبت عطا فرما دے. میں بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ سچی محبت عطا فرما دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرے انور بولے گا، نبی کا چہرے انور بولے گا. ابو بکر کے آنسو تو ہمارے اوپر آئے، انہوں نے غار میں ساتھ دیا تھا، سانپ نے ڈسا، آنسو تو ہمارے اوپر آئے. جب آنسو چہرے انور پر آئے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ محبوب دو جہاں کی آنکھیں کھل گئی. کہا ابو بکر کیا ہو گیا؟ کہا کسی موذی نے ڈس لیا. کہا کہاں؟ ذرا پیر ہٹاؤ. جب پیر ہٹایا تو جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا اسی جگہ اپنا لعاب دہن یعنی منہ مبارک کا لعاب لے کر اسی جگہ لگایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے لگا کہ کبھی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، ڈسا ہی نہیں، بالکل زہر کا اثر فوراً. کہ موذی نے ڈسا پھر بھی جگایا نہ ادب سے، موذی نے ڈسا پھر بھی جگایا نہ ادب سے، صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا، صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا. ساتھ میں تھے ان سے اچھا تو گونگا. سمجھ رہے نہیں؟ ابھی ہمارے کان بہت تیز کام کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے آنکھیں بہت کام کرتی ہیں. ہم دیکھتے بھی خوب ہیں، سنتے بھی اچھی طرح. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. خیر ذکر آیا تو یہاں تک آ گیا. مجھے عرض کرنا تھا وہ تھوڑا ہی سا. وہ کتنا؟ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیتا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جناتوں کو اللہ حفاظت میں رکھ دیتا. اللہ نے نہیں کیا. کیا تو کیا کیا؟ اندازہ لگاؤ ایمان والا. کہ دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن ایک مکڑی نے انہیں غار سے باہر رکھا، ایک مکڑی نے انہیں غار سے باہر رکھا. مکڑی کے جالے کے ذریعے حفاظت کس کی ہے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بات ذرا سی لمبی ہو گئی تو عرض کر رہا تھا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟
छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल 13 साल 18 साल हद हो गई। एक बच्चा 9 साल का था, उसने पूरा कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ कर रखा था। मैंने कहा इसने भी कहा हाँ, और कहा इसने 10 ही महीने में पूरा हिफ्ज़ कर लिया। ईमान वालों, ये है अल्लाह का कलाम जो महबूब दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजिज़ा और उम्मत के लिए करामत है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली? हमारे अल्लाह ने ली। बात मुख्तसर कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना तशरीफ लाए हैं, हज़रत मौलाना का भी बयान होगा, उसी पर दुआ हो जाएगी, लिहाजा थोड़ी देर आपको चंद मिनट और जहमत होगी। तो अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली। एक बात तो ये, कुरान मुक़द्दस इतनी अहम किताब है, अजमत वाली किताब है, बुजुर्गी वाली किताब है। हजरत कुछ न कीजिए, हमको 5 मिनट के उतने बोल यहाँ बात न कीजिए, और आपको लगेगा कि बदअखलाक है, ये मेरी मजबूरी है। पहले हमको बता दिया कीजिए, हम 2.5 मिनट बयान कर लेते हैं, 2.5 घंटा भी कर लेते हैं, 1 घंटा 15 मिनट जितना मतलब उतने कर लेते हैं, और अपनी बात हम 3 मिनट में पूरी भी कर लेते हैं। बुरा ना मानिए कभी, लेकिन हमको पहले लिख के दिया जाए, फिर उसके बाद हम बाद में कुछ सुनते हैं नहीं। अल्लाह का फजल है, सन 1996 में आप जिनको देख नहीं पाए, आरिफ बिल्लाह महबूबुल उलमा हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में सन 1996 में मैंने बयान किया था, मदरसा शहाबुल उलूम, शाहपुर जिला बाराबंकी यूपी। मैं अपने वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था कि कुरान मुक़द्दस इतना वज़नी और भारी और अहम किताब है कि अल्लाह ने आसमानों से पूछा, ए आसमानों ज़रा तुम बोलो, बता दो, अगर तुम्हारे ऊपर मैं अपनी अमानत को उतार दूं तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो आसमानों ने डर के मारे इनकार किया, परवरदिगार तेरे अमानत के बोझ को उठाने की हमारे अंदर ताकत नहीं। अल्लाह ने जमीन से पूछा, ए जमीन अगर तेरे ऊपर अपनी अमानत उतार दूं तू बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? तो जमीन ने भी डर के मारे इस बोझ को उठाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, ए पहाड़ों जरा तुम बता दो, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत को नाजिल करूं, उतार दूं, अमानत से मुराद कुरान मुक़द्दस, तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? तो पहाड़ों ने भी, जुमला याद रखिएगा, डर के मारे, नाफरमानी में नहीं, डर के मारे इस बोझ को उठाने से डर के मारे इनकार कर दिया। परवरदिगार तेरे इस कलाम के बोझ को उठाने की ताकत और सकत हमारे अंदर नहीं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना वरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। आसमानों ने, जमीन ने, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। इन्ना वरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान। इस अमानत को इंसान ने उठाया। कैसा सीना होगा जिस सीने के अंदर कुरान मुक़द्दस, अरे बोलो भाई, कैसा मुक़द्दस सीना होगा, कितना कीमती सीना होगा। बात अब आगे करनी नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है। शम्ए रिसालत के परवानों, ये चंद बातें थी मैंने गुज़ार की हैं। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हालात कुछ ऐसे थे, तन्हा सफ़र मुनासिब नहीं था। हमारे साथ कारी अब्दुल्ला कमर साहब तशरीफ लाए हैं। इनका प्रोग्राम हमारे साथ पाकुड़ ज़िले में था, वहाँ झारखंड में। वो काफ़ी दूर है, तकरीबन 250 किलोमीटर भागलपुर के उस पार। तो साथ में थे, वहीं से सफ़र करके कल आ गए थे, साथ में ही आपके करीब में। तो मैंने उनको कह रखा था मास्टर असरार साहब को कि इस तरह हमारा प्रोग्राम है, वहाँ जामे मस्जिद में रात में बैठ। मैंने कहा मुझे सीमा जाना, असल ये है कि यहाँ बाकायदा इश्तिहार के तौर पर ये सब कुछ है। तो मेरे साथ तशरीफ लाए हैं। अब वक्त तो ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए जहमत दूंगा कारी अब्दुल्ला कमर को कि वो 3 मिनट में अपनी नात पेश कर दें, उसके बाद बात ख़त्म कर दें। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर
आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।